لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 870 سے آغاز کریں گے۔ ابو امامہ باہلی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس جانور کا گوشت کھا لو کہ کسی چیز سے جس کی رگیں کاٹ دی جائیں جب تک کہ وہ دانت کی کاٹ نہ ہو یا ناخن کا شگاف نہ ہو۔ حضرت رافع بن خدیج بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چیز جانور کا خون بہا دے اور جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو تو اس جانور کو کھا لو، اس جانور کو کھا لو۔ اصل بات یہ ہے کہ ذبح کی 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس پر اللہ کا نام لیا جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا خون بہا دیا جائے۔ جب کسی جانور کو ذبح کیا جائے اور اس پر اللہ کا نام بھی لے لیا جائے تو اس جانور کو کھانا جائز ہے۔ یہی ذبح کا صحیح طریقہ ہے۔ ہاں، وہ جو اس کا خون بہایا جا رہا ہے وہ دانت سے بھی خون نہ بہایا جائے اور ناخن سے بھی خون نہ بہایا جائے، کیونکہ ذبح کا جو آلہ ہے وہ دانت اور ناخن اگر ہوگا تو دانت تو ہڈی ہے اور ناخن حبشیوں کی چھری ہے، تو سمجھ کے آئی کہ جانور کو ہر تیز دھار چیز سے ذبح کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ شیشہ ہو، پتھر ہو، لکڑی ہو، کوئی بھی چیز جو اس کا خون بہا دے۔ تیز شیشے سے بھی آپ جانور کو ذبح کر سکتے ہیں، تیز لکڑی سے بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو بانس ہوتا ہے اس کی لکڑی اتنی تیز ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ زخم آ جاتا ہے۔ اسی طرح پتھر سے بھی جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا خون بہے، اور ذبح کرتے وقت بسم اللہ کہنا لازم ہے۔ اب ہمارے ہاں آپ دیکھتی ہیں، آپ گوشت لینے جاتے ہیں تو مرغی کو ذبح کرتے ہیں۔ اب مرغی کو ذبح کرنے کے لیے بسم اللہ کہنا لازمی ہے۔ اب کوئی جان بوجھ کر اگر بسم اللہ نہیں کہتا تو میں آپ کو بتاؤں وہ جانور ہمارے لیے حلال نہیں ہوتا۔ ہاں، کوئی بھول گیا یا کسی نے جو ہے روا ربی میں اس کو ایک مرغی کو ذبح کرتے وقت کہہ دیا اور دوسری پر نہ کہا تو علیحدہ بات ہے، لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کر بسم اللہ نہ کہا تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ تو ذبح کی 2 ہی شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کیا؟ اللہ کا نام لیا جائے، اور دوسری شرط کیا ہے؟ خون بہا دیا جائے۔ اب ذبح کرنے کے لیے ہمیں شریعت نے جو طریقہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جائے تو اس کا سر نہ کاٹا جائے، اس کی شارہ کاٹ دی جائے اور اس کا خون بہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جسم میں نروس سسٹم چلتا ہے، اور یہ نروس سسٹم جو ہے یہ اسپائنل کارڈز کے ساتھ چلتا ہے، تو اگر آپ پوری گردن کاٹ دیں تو ہوتا یہ ہے کہ اسپائنل کارڈ بھی کٹ جاتی ہے، حرام مغز بھی کٹ جاتا ہے، اور حرام مغز جو ہے اسی سے ہی ریشے پھوٹتے ہیں، اسی سے ہی نفس جو ہیں پیغام لاتی ہیں، پیغام لے کے جاتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے پورے جسم کو دماغ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب ایک جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اور اس کی ابھی اسپائنل کارڈ نہیں کٹی ہوتی تو ہوتا کیا ہے، سارا جسم پھڑکتا ہے، سارا جسم مل کے اس مصیبت کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ دیکھتی ہیں اس کے لیے خون بھی سارا جو ہے آتا ہے اور اسی طرح خون نکل جاتا ہے۔ اس کے پھڑکنے کے ساتھ
क्योंकि अगर जानवर के जिस्म में खून रह जाए तो खून में नुकसान देने वाले बैक्टीरियाज जो हैं ये बहुत ज़्यादा पलते हैं, इसीलिए अल्लाह ताला ने खून हराम करार दिया है। तो जिस जानवर को इस तरह ज़िबा किया जाए कि उसकी गर्दन काट के अलहदा कर दी जाए, उसमें से एक तो पूरा खून बहता नहीं है, उस जानवर के जिस्म में खून बाकी रह जाता है, क्योंकि फिर अगर उसका गर्दन काट दी जाएगी तो उसका जिस्म नहीं फड़केगा, वो जानवर नहीं तड़पेगा और खून उसके अंदर रह जाएगा। तो इसीलिए जानवर को ऐसे तरीके से ज़िबा करना कि उसकी गर्दन अलहदा कर दी जाए, ये इस तरह जानवर हराम होता है। अब यूरोपियन कंट्रीज़ में मशीन के साथ जानवर को ज़िबा करते हैं और ऊपर से मशीन आती है और जानवर की गर्दन और उसके जिस्म को अलहदा कर देती है। इसको झटका कहते हैं और इसीलिए झटका हराम है, क्योंकि झटके के ज़रिए स्पाइनल कॉर्ड कट जाती है और जब स्पाइनल कॉर्ड कट जाती है तो जानवर का खून उसके जिस्म में ही रहता है और वो खून जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों के जरासीमों की और मुख्तलिफ बैक्टीरियाज़ की पैदाइश उस खून में बहुत ज़्यादा होती है। तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए हर मामले में भलाई रखी है। हदीस नंबर 876, हज़रत आयशा की हदीस है कि हज़रत अली किसी सफ़र से वापसी पर हमारे पास आए, हमने कुर्बानी से बचा हुआ गोश्त उनको पेश किया ताकि वो खाएं, लेकिन हज़रत अली ने कहा मैं ये उस वक़्त तक नहीं खाऊंगा जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी बाबत सवाल ना कर लूँ। असल बात यह है कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म दे दिया था कि तुम कुर्बानी का गोश्त जो है 3 दिनों में ख़त्म कर दो। तो हज़रत अली का ख़्याल ये था कि अब कुर्बानी को काफ़ी उस वक़्त गुज़र चुका है, तो पता नहीं ये गोश्त खाना जायज़ होगा या ना जायज़ होगा, इसलिए हज़रत अली ने कहा कि मैं ये तब तक नहीं खाऊंगा जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी बाबत सवाल ना कर लूँ। फिर हज़रत अली ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्बानियों का गोश्त इस ज़िलहज से अगले ज़िलहज तक खा सकते हो, यानी पूरा साल खा सकते हो। हमारे यहाँ मिल्लत इस्लामिया में कुर्बानी हर साल होती है, तो कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से कर लिए जाएं और इसमें से एक हिस्सा अपने लिए रख लिया जाए, एक हिस्सा अपने आइज़ा और अहबाब के लिए रख दिया जाए, यानी रिश्तेदारों और दोस्त अजीज़ों के लिए, और तीसरा हिस्सा गुरबा के लिए अलहदा कर लिया जाए। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुश्किल वक़्त में, जब मुसलमानों के पास खुराक कम थी, मुसलमान भूखे थे, तो आपने हुक्म दे दिया कि 3 दिनों तक इसको तुम खा सकते हो, 3 दिनों के पास ये तुम्हारे पास मौजूद नहीं होना चाहिए। लेकिन बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी कि तुम इस ज़िलहज से लेके अगले ज़िलहज तक खा सकते हो, यानी पूरा साल गोश्त कुर्बानी का खा सकते हो। अब अरब लोग जो थे वो कैसे गोश्त को संभालते थे, आपको पता है। अरब में धूप बड़ी तेज़ पड़ती है, वो धूप में गोश्त को सुखा लेते थे और जब उन्होंने इस्तेमाल करना होता था उसे पानी में भिगो लेते, कभी तो सूखे गोश्त को इस्तेमाल कर लेते और कभी उसे पानी में भिगोने के बाद इस्तेमाल कर लेते। हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी ऐसा होता है, गोश्त को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से महफूज कर लिया जाता है। मसलन बाज़ लोग जो होते हैं गोश्त का अचार डाल लेते हैं, और आपको पता है ये जो अचार होता है ये पूरा साल बाज़ औक़ात महफूज रहता है। इसी तरह बाज़ लोग गोश्त की बड़ियाँ बना लेते हैं, और मुझे याद है कि बचपन में हम लोग ये बड़ियाँ जो थे बनाया करते थे और सारा साल फिर कभी सब्ज़ी में डाल के खा लेते और कभी चावलों में डाल के उनके चावल बना लेते, और वो बड़े मज़े के चावल बनते थे। तो गोश्त को
1 साल तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया, इस ज़िलहज से लेके अगली ज़िलहज तक। हदीस नंबर 882, हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से हर कोई अपने दाएं हाथ से खाए, दाएं हाथ से पिए, दाएं हाथ से ले, दाएं हाथ से दे, क्योंकि शैतान बाएं हाथ से खाता है, बाएं हाथ से पीता है, बाएं हाथ से देता है और बाएं हाथ से लेता है। हम पीछे भी बढ़ चुके हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर मामले में दाईं तरफ इख्तियार करना बहुत पसंद था, अपने जूता पहनने में, अपने कंघी करने में, अपने तहारत करने में, हर मामले में। लेकिन यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और पहलू बताया कि शैतान जो है वो बाएं हाथ को इस्तेमाल करता है, वो बाएं हाथ ही से खाना खाता है, बाएं हाथ ही से पानी पीता है, बाएं हाथ से देता है, बाएं हाथ से लेता है। तो एक मुसलमान का ये काम नहीं होने चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें 2 हाथ दिए हैं, दायां हाथ अच्छे और नेक कामों के लिए है और बायां हाथ इस्तिंजा करने के लिए, नाक साफ़ करने के लिए, इन कामों के लिए बायां हाथ है। आपको ये इल्म होना चाहिए कि हम नमाज के बाद जब तस्बीह करते हैं तो उसके लिए हमने जब हाथ उंगलियों पर गिनना होता है तो हमने सिर्फ दाएं हाथ की उंगलियों पर गिनना होता है, बाएं हाथ की उंगलियों पर गिनना नहीं होता। तो इसलिए बाएं हाथ से ना खाना खाइए, ना पानी पीजिए, ना किसी को कोई चीज़ पकड़ाएं, ना किसी से कोई चीज़ लें। ये सारे काम करने के लिए दायां हाथ इस्तेमाल करें। अब बाज़ लोग जो होते हैं वो लेफ्टिस्ट होते हैं, वो बायां हाथ ही इस्तेमाल करते हैं। तो उनके लिए भी मैं यही कहूँगी कि वो अगर दाएं हाथ से नहीं लिख सकते कोई बात नहीं, वो बाएं हाथ से लिख लें, लेकिन खाना कम अज़ कम दाएं हाथ से ज़रूर खाएं, क्योंकि इस पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्ती से हुक्म दिया। सलमा बिन अमर कहते हैं कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बाएं हाथ से खाना खाया। आपने इसे फरमाया दाएं हाथ से खाना खाओ। उसने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता। आपने फरमाया अच्छा तू ऐसा कर ही ना सके। आपने उसे बद्दुआ दी, तू ऐसा कर ही ना सके। असल में उसको दाएं हाथ के साथ खाना खाने से तकब्बुर ने रोका था। इसके बाद वो अपना दायां हाथ उठाने, मुंह तक उठाने के काबिल ही ना रहा। ये मुस्लिम की हदीस है। तो इसलिए अगर आपके बच्चे जो हैं उनमें से किसी के कोई बाएं हाथ से लिखता है या वो लेफ्टिस्ट है तो उसके लिए इतना ज़रूर एहतमाम कीजिए कि खाना वो ज़रूर दाएं हाथ से खाए, पीना दाएं हाथ से करे। बाकी आप देखें इन चीज़ों की आदत डालने की ज़रूरत होती है। अगर आप कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आसान फरमा देंगे। तो ये सोच कर कि बाएं हाथ से शैतान खाता है, बाएं हाथ से शैतान पीता है, बाएं हाथ से शैतान पकड़ता है, बाएं हाथ से शैतान देता है, बाएं हाथ से शैतान लेता है। आप अपने सारे काम दाएं हाथ से किया कीजिए। ये इस्लाम का मिजाज है। इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट के बल लेट कर खाने से भी मना फरमा दिया। पेट के बल लेट कर ना खाएं। बाज़ औक़ात बच्चे जो होते हैं पेट के बल लेट के खाना खा रहे होते हैं, खाना बैठ कर खाइए। हदीस नंबर 884, हज़रत मिक़दाम बिन मादी करब कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, पेट सबसे बुरा बर्तन है जो कि एक आदमी भरता है। इंसान को चंद लुक़मे काफ़ी हैं जो उसकी कमर को सहारा दे सकें। अगर किसी ने ज़रूर ही ज़्यादा खाना है तो वो पेट के 3 हिस्से कर ले, एक हिस्सा खाने के लिए रख ले, एक हिस्सा पीने के लिए रख ले और एक हिस्सा सांस लेने के लिए रख ले। असल बात यह है अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में भेजा है तो
खाना पीना भी उसकी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा है। अब ये खाना पीना इंसान की ज़िंदगी के लिए होना चाहिए, इंसान ज़िंदा रहने के लिए खाए, ना कि खाने के लिए ज़िंदा रहे। बहुत से लोगों ने खाना पीना टारगेट ऑफ लाइफ बना लिया होता है, जितना कमाते हैं सारे का सारा जाके होटलिंग में उड़ा आते हैं और रोज़ बेहतर से बेहतर होटल तलाश करते रहते हैं। तो अपनी सारी ज़िंदगी खाने के गिर्द भी उनकी घूमती रहती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन लीजिए कि पेट सबसे बुरा बर्तन है जिसको इंसान भरता है। तो इंसान को ज़िंदा रहने के लिए खाना चाहिए, इतना खाना चाहिए जिसके साथ ज़िंदगी बाकी रहे। तो इंसान को ज़िंदा रहने के लिए खाना चाहिए, ना ये कि वो खाने के लिए ज़िंदा रहे। अगर आपने खाना ही है तो पेट के 3 हिस्से कर लीजिए। एक हिस्सा खाने के लिए रख लें, एक हिस्सा पानी पीने के लिए रख लें और एक हिस्सा सांस लेने के लिए रख लें। और याद रखिए, काफिर 7 आंतों में खाता है और मोमिन 1 आंत में खाता है। वालिद मोहतरम जो हैं, आपको पता है तफसीरुल कुरान के जो मौलिफ हैं, वो उन्हें ज़्यादा खाना बड़ा सख्त नापसंद था। एक फुल्के से ज़्यादा कभी भी ना खाते और हमें हमेशा नसीहत किया करते कि डंगर ज़्यादा खाते हैं और इस अंदाज में कहते कि हमें ज़्यादा खाने से वाकई नफ़रत महसूस होती। अल्फाज वो ये इस्तेमाल करते, देखो डंगर जो होते हैं ना वो ज़्यादा खाते हैं, इंसान कम खाता है। और वैसे भी मोमिन जो है वो 1 आंत में खाता है, काफिर 7 आंतों में खाता है। इसीलिए आप देखती हैं हर शरीयत में, जो शरीयतें पहले भी गुजर गईं, तमाम शरीयतों में रोज़ा फ़र्ज़ था। हमारी शरीयत में भी रोज़ा फ़र्ज़ है। इंसान जब कम खाता है तो उसकी जो रूहानी कुव्वतें हैं वो कुव्वत पकड़ती हैं, और जब ज़्यादा खाता है तो उसकी हैवानी कुव्वतें जो हैं वो ज़ोर पकड़ती हैं, उसकी ख्वाहिशात उस पर गालिब आ जाती हैं। लेकिन जब इंसान रोज़ा रखता है, आपने ख़ुद तजर्बा किया होगा, रोज़ा रख के हमारा पेट जब खाली होता है तो हमारा नेकियां करने को दिल चाहता है, हमें नेकी करना आसान लगता है। असल में कम खाने के बाद रूहानी कुव्वतें जो हैं उनको तक़वियत मिलती है। इसीलिए आपको रोज़े में नेकियां करने का मज़ा आता है। तो इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी का एक मुस्तकिल तरीका बना लीजिए। हदीस नंबर 887 अब्दुल्ला बिन उमर से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी दूसरे लोगों के साथ खजूरें खा रहा हो और वो 2-2 खजूरें इकट्ठी खाना चाहता हो तो उनसे इजाज़त ले ले। देखें जी कैसा खूबसूरत तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। भाई आप सारों के साथ मिल के खजूरें खा रहे हैं और किसी का दिल चाह रहा है मैं 2 खजूरें इकट्ठी ले लूँ, तो उसे बाकी साथियों से इजाज़त लेनी चाहिए। सब एक एक खा रहे हैं। एटिकेट्स क्या हैं, अदब क्या है, आप भी एक खाएं। अगर आपने 2 खानी है तो बाकी साथियों से इजाज़त लीजिए, ठीक है। अब हमारे यहाँ क्या होता है, मेज़ के ऊपर खाना पड़ा होता है और एक आदमी आता है और वो आधा सालन अपनी प्लेट में डाल लेता है और अपनी प्लेट को चोटी तक भर लेता है और बाद में आधा खाना बचा के चल पड़ता है। तो ये तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से मना फरमाया। दावतों में अपनी प्लेटें चोटी तक ना भरें। शादियों में होता ही यूँ है, जूँ ही खाना खुलता है लोग इस तरह शादी खाने की तरफ भागते हैं जैसे कभी उन्होंने खाना देखा ही नहीं, और 2 मिनट में मेज़ें खाली हो जाती हैं और फिर अगला खाना आने का इंतज़ार करना पड़ता है। और उसकी वजह क्या होती है, लोग हिरस की वजह से अपनी प्लेट भर लेते हैं और बाद में आधा खाना उनकी प्लेट में होता है। लिहाजा दूसरों का ख्याल रखें, अपनी प्लेट में उतना खाना डालें कि बाकियों के लिए भी बचा रहे, और फिर अपनी प्लेट अच्छी तरह साफ़ करें। हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है
کہ کھانے کے آخری لقمے میں برکت ہوتی ہے، کھانے کے آخری لقمے میں برکت ہوتی ہے، تو آپ اتنا کھانا لیں جتنا آپ نے کھانا ہے۔ اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ دوبارہ بھی تو کھانا ڈال سکتے ہیں، لیکن اپنی پلیٹ میں کھانا نہ چھوڑیے، اپنی پلیٹ کو اچھی طرح صاف کیجیے۔ بلکہ ہم نے حدیث میں یہ بھی پڑھا تھا کہ اپنے انگلیوں کو بھی دھونے سے پہلے منہ سے چاٹ لیں، اور اگر آپ کو یہ آداب آپ کو پسند نہیں ہیں تو اپنے آپ کو سمجھائیے یہ آداب میرے نبی کے بتائے ہوئے ہیں، یہ اسلام کا مزاج ہے۔ اپنے مزاج کو اللہ کے رسول کے مزاج کے تابع کر دیجیے، میرے نبی کا یہ حکم ہے۔ تو لہٰذا اپنا جو پلیٹ ہے اس کو بھی اچھی طرح صاف کیجیے، اور اپنے ہاتھوں کو بھی دھونے سے پہلے چاٹ لیجیے۔ کیا خیال ہے اس طرح کھانے میں واقعی برکت ہوگی کہ نہیں؟ آپ کا وہی کھانا جو آدھا ڈسٹ بن میں جانا تھا، وہ آدھا آپ کا کھانا جو ہے لوگوں کے استعمال میں آ جائے گا، واقعی کھانے میں برکت ہو جائے گی۔ میری عادت ہے، میں جہاں بھی شادی پہ جاتی ہوں میں اعلان کر دیتی ہوں سب کے درمیان، ارے بھائی اتنا کھانا ڈالو جتنا آپ نے کھانا ہے، آپ کی پلیٹ میں کھانا بچا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ میں دیکھتی ہوں جو ہوتے ہیں ساری پلیٹیں صاف ہو جاتی ہیں اور کھانا بھی الحمدللہ باقی بچا ہوتا ہے۔ تو تھوڑا سا آپ بھی ان باتوں کا خیال کر لیجئے۔ اگر آپ دوسروں کو نہیں کہتی تو کم از کم اپنے لیے ضرور ان آداب کا خیال رکھیے، باقی دوسروں کو بھی یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث نمبر 899 حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے اس حال میں رات گزاری کہ اس کے ہاتھ پر گوشت کی چکناہٹ لگی ہوئی ہو اور اس وجہ سے اسے کوئی جانور ڈس لے یا اس کے ہاتھ کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے۔ تو کیا سبق آپ کو ملا اس حدیث سے؟ کہ رات کو سونے سے پہلے تیاری کریں، اپنے ہاتھ دھو لیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اس حال میں سو جائیں کہ آپ کے ہاتھوں پر گوشت کی چکناہٹ لگی ہوئی ہے یا کچھ کھانے کے ذرات آپ کے ہاتھ پر لگے ہوئے ہیں۔ اب ان کھانے کی ذرات کی وجہ سے کسی کیڑے مکوڑے نے وہ کھانا کھانے کی غرض سے آپ کے ہاتھ کو کاٹ لیا یا کسی جانور نے آپ کے ہاتھ کو نگل لیا تو قصور کس کا ہے؟ انسان کا اپنا۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے تیاری کریں، اپنے ہاتھ دھوئیں، اپنے برتن ڈھانپیں، آگ بجھا دیں، بستر جھاڑ لیں۔ ایسا نہ ہو کہ بستر کے اوپر کوئی جانور ہو، جب آپ لیٹیں تو آپ کو کاٹے۔ تو اپنے بستر کو پہلے جھاڑ لیں، سونے کی دعائیں پڑھیں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، اور جب صبح اٹھیں صبح اٹھ کر پھر دعا کے ساتھ اپنی صبح کا آغاز کریں، اور اپنے بستر سے اٹھ کر سب سے پہلا کام کیا کریں؟ اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں، فجر کی نماز ادا کر کے اپنے دن کے کاموں کا آغاز کریں۔ اسلام ہمدردی اور خیر خواہی کا دین ہے۔ اللہ اور اس کے رسول یہ نہیں چاہتے کہ مسلمان اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کر بیٹھیں۔ ہمیں بھی ان ہدایات کی پابندی کرنی چاہیے۔ ان ہدایات کے ساتھ دنیا میں بھی ہم فائدہ اٹھاتے ہیں اور اللہ کی طرف سے اجر بھی پاتے ہیں۔ حدیث نمبر 890 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن فرمایا، جس نے ذبح کر لیا نماز سے قبل تو اس کو دوبارہ ذبح کرنا چاہیے۔ یعنی قربانی ذبح کرنے کا جو وقت ہے وہ عید کے نماز کے بعد ہے، اور جو شخص عید کی نماز سے قبل ذبح کر لے اس کی قربانی نہیں ہوتی، اسے دوبارہ ذبح کرنا چاہیے۔ اب یہ ہے
کہ نماز عید کا جو وقت ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ نماز عید کا وقت وہی ہے جو کہ اشراق کی نماز کا وقت ہے۔ آج کل سورج جو ہے تقریباً 5:05 پر 5 بجے کے آس پاس طلوع ہو رہا ہے۔ اب اشراق کا وقت کب ہوتا ہے؟ جب سورج نکلنے کے بعد کوئی 20 منٹ گزر جائیں، تھوڑا سا سورج اونچا ہو جائے، تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آج کل عید کی نماز کا وقت 5:30 ہو جائے گا۔ آپ کو بات عجیب لگی نا؟ ہمارے ہاں جو نماز عید کی لیٹ پڑھی جاتی ہے اس کی وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو آسانی ہو جائے، ورنہ عید کی نماز کا وقت وہی ہے جو اشراق کی نماز کا وقت ہے۔ سورج طلوع ہوا اور طلوع ہونے کے بعد تھوڑا سا اونچا ہو گیا، سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ تک اشراق کا وقت ہو جاتا ہے۔ تو عید الفطر میں بھی کا بھی وقت یہی ہے اور عید الاضحیٰ کا وقت بھی یہی ہے۔ اب یہ ہے کہ عید الاضحیٰ میں تو نماز جلدی پڑھانی چاہیے کیونکہ لوگوں نے آ کر قربانی کرنی ہوتی ہے۔ تو جس شخص نے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کر لی اس کی قربانی تو درست ہو گئی، اور جس نے اس سے قبل قربانی کر لی اس نے اپنے لیے گوشت کھانے کے لیے ایک جانور ذبح کر لیا، اس کو دوبارہ قربانی کرنی چاہیے۔ اب یہ قربانی جو ہے یہ حضرت ابراہیم کی سنت کے احیاء کے لیے ہے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے مطالبہ کیا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، اور یہ بیٹا کون سا تھا؟ اکلوتا بیٹا۔ اللہ تعالیٰ نے 86 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل عطا کیے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ اس بیوی اور بچے کو اپنے سے جدا کر دو۔ حضرت ابراہیم فلسطین میں رہتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو مکہ میں چھوڑو جہاں کل کو اللہ کا گھر بنے گا۔ تو حضرت ابراہیم اللہ کے حکم کے ساتھ حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو مکہ چھوڑ گئے، اور آپ ان کی خبر لینے کے لیے مکہ تشریف لاتے رہتے تھے۔ ویسے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ مکہ کا اور فلسطین کا فاصلہ جو ہے 1100 کلومیٹر کا ہے، اور اس دور میں 1 مہینہ جانے کا اور 1 مہینے آنے کا سفر ہوتا تھا۔ اب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم فلسطین میں رہتے تھے، انہیں خواب آئی کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ ایک دن خواب آئی، دوسرے دن خواب آئی، جب تیسرے دن بھی یہی خواب آئی تو حضرت ابراہیم جو تھے ان کو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب وہاں فلسطین سے سفر کا ارادہ باندھا اور مکہ تشریف لائے، اور مکہ آ کے حضرت اسماعیل سے بات کی۔ حضرت اسماعیل نے باپ کی بات سننے کے بعد کہا، جو جواب دیا وہ قرآن مجید میں محفوظ ہے۔ حضرت اسماعیل نے کہا تھا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ کر گزریے، آپ عنقریب مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اس وقت حضرت اسماعیل کی عمر 13 سال تھی۔ اب 13 سال کا بچہ اتنی دانش مندی کے ساتھ اور اتنے حوصلے کے ساتھ اپنی جو ذبح ہے اس کے لیے آمادگی کا اظہار کر رہا ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کے ذبح کرنے کے لیے چلے۔ پہلے دن شیطان نے برگلایا، دوسرے دن پھر لے کر چلے، پھر شیطان نے برگلایا، تیسرے دن پھر حضرت اسماعیل کو لے کے چلے، اور اس دن حضرت ابراہیم کے گلے پہ چھری پھیر ہی دی، اور چھری پھیرنے سے قبل حضرت اسماعیل کا جو تھی چہرہ جو تھا زمین کی طرف کر دیا کہ شاید میں اس کے چہرے کو دیکھ کر تو اس کے گلے پہ چھری نہ پھیر سکوں۔ خیر حضرت ابراہیم نے اپنی طرف سے تو کام کر گزرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آواز دی، یا قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنی خواب سچ کر دکھائی ہے۔
तूने अपनी ख्वाब सच कर दिखाई है। अल्लाह ताला सिर्फ हज़रत इब्राहीम का इम्तिहान लेना चाहते थे, और जब हज़रत इब्राहीम इस इम्तिहान में पूरे उतर आए तो अल्लाह ताला ने आसमान से एक मेंढा भेज दिया, और आप हज़रत इब्राहीम को हुक्म दिया इस मेंढे को ज़िबा कर दीजिए। तो ये जो कुर्बानी है ये हज़रत इब्राहीम के इसी वाक़े की यादगार है। हर साल जब आप कुर्बानी करते हैं तो ये याद कर लिया कीजिए कि इस कुर्बानी करने से अल्लाह हमें ये सबक याद दिलाना चाहते हैं कि अगर अल्लाह ताला हमसे औलाद की कुर्बानी मांगे तो हमें हज़रत इब्राहीम की तरह उसके लिए तैयार रहना चाहिए। बाकी वो उस रब रहीम की मेहरबानी है कि वो हमसे औलाद की कुर्बानी नहीं लेता, बल्कि उसने इस जानवर की कुर्बानी को औलाद की कुर्बानी की जगह पर कबूल कर लिया। तो ये जो कुर्बानी है ये हमें हर साल याद दिलाती है कि एक मुसलमान को हर वक्त अपने जान, माल, औलाद की कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए। तो इस कुर्बानी को एक आदत के तौर पर ना कीजिए, क्योंकि हम लोग आमतौर पे एक आदत के तौर पे इस कुर्बानी को कर लेते हैं हर साल। इसका जो असल इसके पीछे जज्बा है उस जज्बे को भी याद कीजिए, उस जज्बे को भी याद कीजिए। एक बात मैं आपको और भी बताना चाहती हूँ, कुर्बानी का जो वक्त है ये 13 ज़िलहज को असर तक है। हमारे यहाँ आमतौर पर ये मारूफ़ है कि कुर्बानी पहले दिन हो सकती है, दूसरे दिन हो सकती है, तीसरे दिन हो सकती है, जबकि कुर्बानी का वक़्त, सही वक़्त जो है वो 13 ज़िलहज को असर तक है, क्योंकि कुर्बानी का ताल्लुक़ हज से है। आपको पता है हज में हाजी कुर्बानियाँ कर रहे होते हैं, तो हज में हाजी जो हैं हज मिना में चाहें तो 2 दिन ठहरें और चाहें तो 3 दिन ठहरें, और जब तक वो मिना में ठहरते हैं तब तक वो कुर्बानी करते हैं। तो लिहाजा अगर वो 3 दिन ठहरते हैं तो ये फिर 13 ज़िलहज बनता है। तो लिहाजा कुर्बानी का वक़्त 13 ज़िलहज की असर तक है। बाकी ये बात वाज़ेह है कि पहले दिन कुर्बानी का सवाब ज़्यादा होगा, दूसरे दिन उससे कम, तीसरे दिन उससे कम, ये बात तो वाज़ेह है। इसलिए कुर्बानी जो है अगर किसी ने पहले दिन ना की तो वो दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन भी कर सकता है। हदीस नंबर 902 अबू सईद खुदरी से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लहसुन, प्याज और गंदना खाने से मना फरमा दिया। ये हदीस हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। असल बात यह है कि लहसुन जो है ये अगर कच्चा खाएं तो मुंह से बू आती है, इसी तरह प्याज भी अगर कच्चा खाएं तो मुंह से बू आती है। गंदना जो है ये भी एक तरकारी है जो कि लहसुन के मुशाबे होती है। अब इन चीज़ों को खाने की ममानियत इसलिए की गई कि जब कोई शख्स ये तीनों चीज़ें खा लेता है तो उसके मुंह से बू आती है, उसके मुंह से बू आती है, और जब वो नमाज़ पढ़ने के लिए जाता है तो नमाजियों को भी तकलीफ़ होती है, और ख़ास तौर पे फरिश्तों को तकलीफ़ होती है जो कि नमाज में हाजिर होते हैं। अब ये है कि हम लोग बाज़ औक़ात इन सब्ज़ियों को सलाद के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि अगर आप इनको, आपने मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ने के लिए जाना है तो फिर प्याज कच्चा ना खाया जाए। इसी तरह मूली के खाने से भी मुंह से बू आती है। हाँ, अगर इन सब्ज़ियों को, लहसुन, प्याज और इस तरह की दूसरी सब्ज़ियों को अगर पका लिया जाए तो इनकी फिर बू ख़त्म हो जाती है, फिर इनको खाकर नमाज़ पढ़ने के लिए जा सकते हैं। और वैसे भी हमारे खानों में जब लहसुन और प्याज डाला जाता है तो आपको पता ये पक जाता है, उसके बाद इसमें से बू नहीं आती, लेकिन इनको कच्चा खाकर मस्जिद में जाना मना है। इस सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि जो आदमी इस बदबूदार दरख्त का फल यानी प्याज खाकर आए, प्याज खाए, वो हमारी मस्जिद के करीब ना आए।
क्योंकि फरिश्ते इस चीज़ से तकलीफ़ महसूस करते हैं। हदीस नंबर 916 अबू मूसा अशरी से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शराब पर हमेशगी करने वाला, जादू पर ईमान लाने वाला और कता रहमी करने वाला, ये लोग जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। अब शराब के बारे में हम पीछे पड़ चुके हैं। इंसान जब शराब पीता है उसकी नमाज कबूल नहीं होती, बल्कि एक हदीस में हमने देखा था कि जो शख्स हमेशा शराब पीता है उसकी मिसाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे दी थी जैसे कोई बुतों की पूजा करता है। शराब तमाम गुनाहों की जड़ है। जब इंसान शराब पी लेता है, अपने होशो हवास से आरी हो जाता है और उसके बाद तमाम गुनाह जो हैं करना उसके लिए आसान हो जाता है। तो जो शख्स शराब पिए और फिर तौबा ना करे, शराब हमेशा पीता रहे, तो ऐसा शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और दूसरा जो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा, जादू करने वाला, जादू पर ईमान लाने वाला। जादू बर हक है और इस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू हो गया था, लेकिन आपको ये इल्म होना चाहिए कि जब आप पर जादू हुआ तो अल्लाह ताला ने उसके इलाज के लिए मुअव्वज़तैन उतारी थी, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, और उसी के साथ ही आपके जादू का तोड़ किया गया था। बाज़ लोगों का ख्याल होता है कि जादू का तोड़ जादू से करना चाहिए। मैं आपको बताऊं, जादू कुफर है और कुरान मजीद में ने इसको वाज़े तौर पर कुफर कहा है। सूरा बकरा में इसका ज़िक्र है। तो जादू करना भी कुफर है, कराना भी कुफर है। जादू का इलाज जैसा कि मैंने आपको बताया कुरानी आयत के साथ होगा। जादू काला इल्म है और जादू का इलाज जो है वो नूरानी इल्म यानी कुरान मजीद की आयत से होगा। कुरान मजीद की ऐसी आयत जिसमें अल्लाह की सिफ़ात का ज़िक्र हुआ है, या कुरान मजीद की ऐसी आयत जिसमें हज़रत मूसा का जो मुकाबला हुआ है जादूगरों से, ऐसी आयत उस वक़्त पढ़ी जाती हैं। जादू के इलाज के लिए ख़ास तौर पे आयतल कुर्सी बड़ी मुफीद है। इसी तरह एक और मैंने पिछले दिनों में आपको एक वजीफ़ा बताया था और वो नमाज के बाद के अस्कार में शामिल था। जो शख्स 100 दफ़ा ये कलिमात कहे उस पे जादू का असर नहीं होता। कौन सी कलिमात? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। जो शख्स ये कलिमात 100 दफ़ा दिन में कह ले, उस दिन उस पर जादू असर नहीं करेगा। इसके अलावा इन कलिमात के कहने से उसे 10 ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब भी मिलेगा। तो जादू कराने वाला या जादू पर यकीन करने वाला शख्स जो है वो जन्नत में दाखिल ना होगा। इसी तरह कता रहमी बहुत बड़ा जुर्म है। जुबैर बिन मुतम कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कता रहमी करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। आम तौर पर लोगों के अक्सरियत की ताल्लुकात की बुनियाद ज़ातियात पर होती है। यही वजह है कि वो बड़ी जल्दी नाराज़ हो जाते हैं और उनका सारा ज़ोर इस बात पर होता है, फ़लाँ ने मेरे साथ नेकी की तो मैं उसके साथ नेकी करूँगा, और फ़लाँ ने मेरे साथ बुराई की तो मैं उसके साथ बुराई करूँगा। हालांकि सिला रहमी का ताल्लुक़ अल्लाह के हुक्म के साथ है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उसके साथ जुड़ो जो तुमसे कटता है। सिला रहमी होती ये है कि जो आपसे कता रहमी करता है उसके साथ सिला रहमी करो, क्योंकि सिला रहमी की बुनियाद ज़ातियात और आपस के ताल्लुकात नहीं हैं, बल्कि सिला रहमी से मुराद अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि तुमने अपने रिश्तेदारों से जुड़ के रहना है। अगले बंदे का रवैया क्या है इस बात को नज़रअंदाज कर दें। एक ही बात सामने रखें, नेकी कर दरिया में डाल। मैंने अल्लाह की खातिर इससे नेकी करनी है, और जब आप अल्लाह की खातिर नेकी करेंगे वो रब देख रहा होता है। और होता ये है, आप जब 2-3 दफ़ा अगले के साथ नेकी करते हैं, अगला भी कोई पत्थर नहीं होता, पत्थर पर भी
ایک پانی کا قطرہ روز پڑتا رہے تو اس میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے، انسان تو پھر انسان ہوتا ہے۔ تو آپ نے جو صلہ رحمی کرنی ہے وہ کس کی خاطر کرنی ہے؟ اللہ کی خاطر کرنی ہے، تب ہی آپ اس کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، ہمارا یہ جو باب تھا قربانی، ذبیحوں، کھانے پینے، عقیقے اور جانور سے نرمی کا باب، یہ الحمدللہ ختم ہو گیا ہے۔ اس میں ہم نے قربانی کے مسائل پڑھے، ذبح کرنے کے مسائل پڑھے، کھانے اور پینے کے آداب پڑھے، عقیقے کے آداب کیا تھے یہ بھی ہم نے اس میں دیکھا، اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ احکام کہ جانور سے نرمی کرو، اس کو ذبح کرتے وقت چھری تیز کر لو، اس کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرو، اس کو اس سے پہلے کھلا پلا لو۔ تو یہ سارے احکامات ہم نے الحمدللہ پڑھ لیے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم